Good morning, children. So today I am here sitting in the school and I would like to show you how beautiful the weather is today. And as about today, I'm not going to tell you a story, but we are going to do something different. So, as I'm not going to tell you a story, so what we are going to do today? We are going to do CCT practice, and I know that you don't like to, many of you feel that CCT practice is very tough, but I have realized in my classes that many students like to do these CCT activities. And when you go in depth in these activities, means when you hold fast with these activities, you realize that they are very interesting. So I'm taking one activity today. Kindly watch it, and I assure you that you will enjoy it. Okay, children, so what I am going to teach you today is blushing parrots. So section 1.7 blushing पैरट्स, या ऐसे भी पैरट्स हैं जो ब्लश करते हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. इट्स रिटन अ क्यूट कलरफुल companion is the parrot. Yes, it's found in warm climate almost all over the world. These parrots are a diverse species, be it a macaw, parakeet, cockatoo, and many others. All of them have curved beaks and can mimic and imitate many sounds including human speech. तो इसमें क्या कहा गया है कि different species हैं parrots की, जैसे कि macaw, then parakeet and then कोकेटू. ये डिफरेंट टाइप्स के पैरट्स हैं. तो ये जो पेरेंट्स हैं उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इनके कर्व बीक्स होती हैं, एंड वन फीचर इज़ दैट दे कैन मिमिक एंड इमिटेट मेनी साउंड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पीच. मतलब हमारी भी अगर नकल करनी हो तो हमारी नकल भी वो कर सकते हैं. देन एवर heard of the blushing parrots? There are some interesting facts about parrots that blush. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. Parrots may blush and ruffle their head feathers to communicate visually. According to a study which helps better understand the complex social lives of these highly intelligent birds, researchers in France studied 5 hand-reared captive blue and yellow macaws interacting with one another with their ह्यूमन केयर टेकर्स. सो मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि पैरट जो हैं वो ब्लश करते हैं और अपने हेड फेदर्स को रफल भी करते हैं जब उनके साथ विजुअली कम्युनिकेट करते हैं. मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद देम, दे विल बी showing their, they will also be communicating with you by blushing and ruffling their feathers. So ये अपने आप में बहुत अजीब फैक्ट है, लेकिन ये रियलिटी है कि वो सच में कम्युनिकेट करते हैं जब आप उनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं. सो दे आर हाईली इंटेलिजेंट वर्ड्स. दे कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद देम दैट यू आर गेटिंग कम्युनिकेटेड विद देम. मतलब आई टू आई कम्युनिकेशन उन्हें समझ में आता है. देन सेकेंड वन इज़ रिटन. हाँ, उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है. ये फ्रांस में रिसर्चर्स ने स्टडी भी किया. उन्होंने क्या किया, 5 हैंड रियर्ड कैप्टिव ब्लू एंड येलो मकाउस को लिया. मतलब ये जो मकाउस उन्होंने अपने पास रखे थे ब्लू एंड येलो कलर के, इनको उन्होंने देखा कि ये वाले मकाउस जो हैं अपने जो ह्यूमन केयर टेकर्स हैं उनके साथ जब इन केयर टेकर्स ने उनके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाया तो ये उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, इंटरेक्ट करते थे. Second part, they assess their feather position ruffled or sleeked on the crown, nape and cheek, as well as the presence or absence of blushing on the bare skin of the cheek. They found that feather ruffling was more common when the words were not in motion, such as during social interactions and resting periods. So this is again the assessment or the observation of the researchers. उन्होंने क्या assess किया कि ये जो मकाउस हैं इनकी जो फैदर पोजीशन है ये रफल करती है या स्लीक, उनके जो फैदर्स है वो स्लीक्ड ऑन होते हैं ऑन द क्राउन. मतलब उनके जो क्राउन के ऊपर, क्राउन ये वाला पार्ट होता है, तो मतलब एक मकाओ का, एक पैरट का, तो उसके जो फेदर्स हैं वो स्लीक डाउन होते हैं. एंड दे स्लीक्ड एंड एज अबाउट नेप, ये गर्दन वाले पार्ट को नेप कहते हैं. एंड चीक, और उनके चीक जो हैं वहाँ पे एज वेल एज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लशिंग ऑन द बेयर स्किन ऑफ द चीक. तो चीक के बारे में क्या लिखा है कि ये जो मकाओ पैरट्स हैं उनके चीक पे ब्लशिंग देखने को मिलती है. मतलब वो ब्लशिंग आती है, उनकी जो स्किन है उसमें कलर डिफरेंस आता है जब वो कम्युनिकेशन करते हैं. दे फाउंड दैट
feather ruffling was more common when the words were not in motion such as during social interactions and resting periods. तो उसके अलावा उन्होंने ये भी फाइंड किया कि ये जो रफलिंग है ये ज़्यादा कॉमन थी जब वर्ड्स मोशन में नहीं होते थे, जब उड़ नहीं रहे होते थे तब वो ज़्यादा रफलिंग करते हैं, और जब वो सोशल इंटरेक्शंस करते हैं उस टाइम पे या फिर रेस्टिंग पीरियड्स पे ये फैदर्स की जो मोशन है वो ज़्यादा होती है, रफलिंग ज़्यादा होती है। इससे क्या प्रूव होता है कि वो इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। कौन कोशिश करते हैं? मकाउस मीन्स पैरट्स। देन थर्ड पार्ट इज ब्लशिंग मे नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू ह्यूमंस। द featherless cheek of the blue and yellow macaw parrot reveals rapid skin color changes in situations associated with emotion. The macaw's particularly complex face enabled communication of emotion via colored and feather displays. तो यहाँ पे लिखा है कि माना कि ये ह्यूमन बींग्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग का ही नहीं है ब्लशिंग करना। ये अब कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? featherless cheek of the blue and yellow macaw parrot. It reveals that his skin can also be changed in situations associated with emotion. मतलब जब हम ब्लशिंग करते हैं ना, ये हमारा सिर्फ हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हम कुछ इमोशंस की वजह से ब्लश करते हैं। किसी ने कभी कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया तब भी हमें शर्म सी आने लगती है और हमारा फेस ब्लश करता है, तो ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो सिमिलरली ये जो पैरट्स हैं इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो इमोशंस हैं, दे आर ऑल्सो they are also seen in the blushing of their skin. Next beta fourth one, crown feather ruffling and blushing were both more common when the human caretaker was actively interacting with the parrot by talking and maintaining eye contact than when the keeper was in the room but ignoring and turning their backs to the world. Together these results suggest that head feather ruffling is associated with positive social interactions. So ये कह रहे हैं कि जो क्राउन के ऊपर जो फैदर की रफलिंग होती है, ब्लशिंग जो होती है, ये तब होती है जब ह्यूमन केयर टेकर जो है वो एक्टिवली इंटरेस्टेड दिखाई दे, मतलब उसके साथ मकाओ के साथ, पैरट के साथ कम्युनिकेशन में अगर वो इंटरेस्टेड है तो उस टाइम पे वो दिखाई देता है, और साथ में तब भी दिखाई देता है जब केयर टेकर जो है, ह्यूमन केयर टेकर जो है वो पैरट के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, मतलब वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ़ दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अस, the parrots also understand that if the human beings are looking towards us, it means that we have to communicate. और जैसे ही बैक टर्न की तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। सो दे आर दैट मच इंटेलिजेंट। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Match the titles below to the 4 paragraphs given above. There are 2 extra titles given. तो मतलब 4 टाइटल्स हमें चाहिए according to paragraphs, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे के रखे हैं। तो पहला पैराग्राफ कहता है, तो वो हमें देखना है। पहला पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि वो ब्लश करते हैं और उसके बाद सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, ये सब हमने देखा था। तो मुझे लगता है पैरा 1 का जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी फेशियल फीचर्स, बी। ठीक है, एंड देन पैरा 2 को भी देख लेते हैं। पैरा 2 टॉक्स अबाउट द रिसर्च ऑफ द रिसर्चर्स। तो पैरा 2 में क्या जाना चाहिए? लेट मी सी। पैरा 2 में जाना चाहिए स्टडिंग द वर्ड्स, सी। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बी एंड पैरा 2 जाना चाहिए सी। पैरा 3 शुड बी, पैरा 3 देखते हैं क्या है। ओके, उनके चीक्स का कलर चेंज हो जाता, सो ए, कलर मी पिंक। एंड लास्ट वन में हमने क्या देखा था कि वो जानते हैं कि इफ़ यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद देम तो इंटरेक्शन हो रही है, अगर आपने उनकी तरफ अपनी बैक टर्न कर दी तो इंटरेक्शन नहीं हो रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई, टॉक टू मी ह्यूमन, मुझसे बात करो। वाई आर यू टर्निंग योर बैक टूवर्ड्स मी? सो इट विल बी द आंसर ऑफ पैरा 4। सो पैरा 1 का टाइटल हम देंगे फेशियल फीचर्स, पैरा 2 का हम देंगे स्टार्टिंग द वर्ड्स, है ना। देन पैरा 3 का हम देंगे पैरा 3 का कलर मी पिंक, ए, एंड पैरा 4 का होगा टॉक टू मी ह्यूमन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज इन द पैराग्राफ इज़ नॉट द सेम एज डैश एंड डैश। तो 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, फीचर भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्वालिटी भी, ट्रेट भी, बट फेस कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। एस्पेक्ट भी होता है बट लेवल। सो आंसर विल बी फेज एंड लेवल जो हैं दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग नहीं है। सो योर आंसर विल बी द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन द पैराग्राफ इज नॉट द सेम एज फेज एंड लेवल।
नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन, एंड सर्कल द फैदर पोजीशन नॉट इवेलुएटेड फॉर द रिसर्च। अब फैदर की पोजीशन उन्होंने कौन सी की थी, मतलब कौन सी पोजीशन की उन्होंने इवेलुएशन की थी। वी नो दैट दे वर टॉकिंग अबाउट द क्राउन फैदर, है ना। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी बातें की थी, कहाँ कहाँ के फैदर। देखो जो पैरट है उसकी बॉडी पे फैदर्स तो होते ही हैं, तो लेकिन हमने पर्टिकुलरली उनकी बात करनी है जो इस चैप्टर मतलब इस पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ्स में से जिनकी बात की गई है वो तो मतलब यहाँ पे पूछा गया नॉट इवेल्युएटेड, जिनकी इवेल्युएशन नहीं की गई है वो आपको बताना है। देखो फर्स्ट वन इज, ये तो हो गया क्राउन वाला, इसकी तो बात हुई है। बी जो पार्ट है, बी मतलब चीक वाला पार्ट है, तो इसकी भी बात हुई है। सी है, इसको कहते हैं हम ये जो है मतलब उसकी, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी, क्राउन, नेप एंड चीक। अब ध्यान से देखिए, क्राउन की बात भी हो रही है, देन बी वाले पार्ट में चीक की बात भी हो रही है और सी में नेप की बात भी हो रही है, ठीक है। तो मतलब डी पार्ट की बात नहीं हो रही है। दोबारा से देख लीजिए, लेट मी शो यू। दे आर टॉकिंग अबाउट crown, nape and cheek. They are not talking about the tail feathers. So D part is the right answer. मतलब D वाले part का evaluation नहीं हुआ है. Then pick the option that lists the image showing the situation when crown feather ruffling and blushing were common. तो मतलब आपको वो image दिखानी है जिसमें ये बताया गया है कि crown जो फेदर हैं उनकी रफलिंग और ब्लशिंग जो है वो कॉमन होती है। वो कब होती है, हमने लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि क्राउन के फेदर्स की रफलिंग और ब्लशिंग टुगेदर तब होती है जब उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट बनाया जाता है। तो कौन सी इमेज है जिसमें आई टू आई कांटेक्ट बन रहा है? फर्स्ट वाले में तो सिर पे बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। सेकंड वाले में बेचारा मकाओ अकेला ही घूम रहा है। थर्ड वाले में भी कोई भी नहीं है उसके साथ। बट फोर्थ वाले इमेज में आप देखिए, अ लेडी इज़ मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद द पैरेट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपको पता है विजय और वानी आपको सब कुछ ये करवा रहे हैं, तो विजय और वानी आपस में बात करते हैं। वानी कहती है, वॉजंट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन? When I would like to know is what I would like to know is whether the blue and gold macaws actually talk. तो वो कहता है विजय, I can explain that. You see, the blue and gold macaws can learn a vocabulary of around 20 words and phrases. They can learn to imitate sounds and words, so they cannot really talk. मतलब वो सिर्फ imitate करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बात करते हैं। मकाओ जो पैरट्स हैं उनकी एक क्वालिटी है कि वो 20 वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो लर्न कर सकते हैं, और उसके साथ ही ये नहीं है कि वो बात करना जानते हैं, वो सिर्फ इमिटेट करते हैं साउंड्स एंड वर्ड्स को। गिवन द क्लैरिटी ऑफ देयर वॉइस, मैनी पीपल कंसीडर देम टू बी वन ऑफ द बेस्ट टॉकिंग पैरट्स। क्योंकि उनकी वॉइस इतनी क्लियर होती है, लोगों को लगता है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे टॉकिंग पैरट्स हैं। ओह, आई सी। Thanks, Vijay. Could we now please read a poem about the zebra? It's a funny one. My favorite. Let's read it. So आज मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ. We will read it in the next class. Thank you. Have a nice day.